and ISI involved, allegedly, they wanted to look this act looked as something that was aggravate, or that was done behind that was actually conducted by Hindu terror groups, and this was the topic which we decided to discuss on. And even if the content, if you look at the contents of the program, in the arguments made against any specific community, entirely we brought out the facts that this was something that was revealed by the IPS officer and ex-commissioner of Mumbai Police, that this is the investigation, and we found out that he was wearing a red thread. He was carrying an ID card of an Indian, Hindu by religion, and hailing from Bangalore. The whole, if you look at the content of the entire program, there were no controversial, there were no statements made by any other participants, which included from people from all walks of life. I will just move on to the second one, sir. So in the all the programs that he's provided in the complaint copy are none of the programs that we decided. Actually, these were topics which were already doing circles, and it was widely reported on these topics by other media outlets as well. In fact, I have my colleague from the editorial team, Mr. Avnish Oja, who can add to what I'm saying. Mr. Oja, if you could just pitch in here, please. Yeah, sir, sure. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Sir, basically what I have observed, what Mr. Ansari is alleging is a generic complaint that, I am annoyed with this channel. And sir, especially I want to point out your attention towards few words he has added. Those are very objectionable. So now, right now he said that ऐसा लगता है कि ये भक्तगण का चैनल है और रामायण जैसा कोई कार्यक्रम चल रहा है. This is entirely baseless. Now, second point, he has said that it's evident that these channels are being funded by political parties. I object this one, sir. He just pinpointing generic things without any concrete evidence towards what he is saying. जो न्यूज़ हमने रिपोर्ट की है, if Mr. Ansari could hear me, Mr. Ansari, hope you are able to hear me. Yes, I am able to hear you. So what I am saying कि आपने कहा कि हम गुणगान करते हैं ऐसे लोगों के बयान का. If you have gone through those shows deeply with a neutral mindset, आपने ये देखा होगा कि हमने उनको क्वेश्चन किया है कि why you are giving these kind of statements. Like you said मुगलों पर नागरिकता की लड़ाई मुगलों पर आई. इस एपिसोड को आप देखेंगे तो we have questioned the man who has given this statement. I want to say something. हमने ऑब्जेक्ट किया है, this is not good for our society. And secondly, ma'am, I want to say something. Let me complete, Mr. Ansari. हमने साल में 300 शो चलाए होंगे, है ना? उसमें से आपने पिक एंड चूज किया 500 जो आपको सूट करते थे. हमने हर टॉपिक पे डिबेट की है, बीट इकोनॉमिक इशू, बीट डेवलपमेंट इशू, बीट इलेक्शन. वी हैव कवर्ड ऑल द इशू. और इसमें से कोई भी इशू ऐसा नहीं था जो हमने आउट ऑफ ब्लू हमने खुद ही पिक किया और हमने खुद ही इसको क्रिएट कर दिया, है ना? और जहां भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, जस्ट गो थ्रू द शो. जिसने भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है, हमने उसको क्वेश्चन किया है कि मतलब दिस वाज नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी. I want to say something about this, ma'am. This is my specific point because whatever you are saying, it's all please give me the opportunity to mention something. Can you prove how? अंसारी जी, आप प्लीज चुप रहिए, अभी उनको कंप्लीट करने दीजिए. Mr. Ansari, can you? आप प्लीज वेट करिए, उनको कंप्लीट. Thank you, madam. Thank you, madam. This is what I am saying, Mr. Ansari. Can you prove that we are getting funding from कंप्लीट political parties? फिर आप काउंटर करेंगे. You are pointing your fingers towards one of the biggest media houses of this country. We are a well-reputed company. Look, madam, sir, I just think that we should point out these things that with what mindset he is alleging us. Right now, in front of everybody, he said that this channel is getting funds from a political party. So this is the way he is alleging us on all the points. Like every sweeping statement, and he's alleging without any base, without any concrete base. Like he said that हमने गुणगान किया जिन्होंने ऐसे बयान दिए. No, madam, no, sir. We criticized them. So the entire complaint, the contents of the complaint, his complaint,
Nowhere has he provided any specific information or So your main defense is that look, these complaints are vague, very generic. Yes, sir. We can only defend when he makes a specific statement. No particular contents are pointed out which are violative of any of the guidelines. He made a specific complaint that we carried the term, we use the word Islamic terror. Sir, in a particular program which was broadcast on 23rd February, we deny that, sir, and we ask him to produce evidence to that effect. If he can make proof of it, if he can show that. That Yes, you sir. already There is only one, pointed out. yes, sir, specific allegations that he had made. And then, yes, sir. Okay. Yes, Mr. Ansari, आपको आप बताइए क्या कहना है? सर इन्होंने कहा कि कुछ 5 टॉपिक्स को इन्होंने चूज कर लिया है और उसको लेकर के इन्होंने कंप्लेन को रेज किया है। सर ओनली 5 टॉपिक्स नहीं है सर, बहुत सारा टॉपिक्स है। अगर इनके चैनल्स यूट्यूब चैनल्स पे जाएंगे सर तो सारा आपने 5 टॉपिक लिए हैं, कोई बात नहीं, आप 5 का एक भी उठा सकते हैं। उन्होंने जब 300 दिए हो बहुत अच्छे हो, अगर एक भी गलत है तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, उस हद तक तो आप ठीक कह रहे हैं। पर उनका ये कहना है कि ये जो आपने 5 टॉपिक लिए हैं, ये ईच टॉपिक में क्या चीज ऐसी है जो गलत है, आपने वो पॉइंट आउट नहीं किया। कौन से कंटेंट्स गलत हैं उसमें? डेफिनेटली सर, हिंदू आतंकवाद के पीछे किसका हाथ, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल टर्म्स है। हिंदू आतंकवाद नहीं होता है, मुस्लिम आतंकवाद नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ये आतंकवादी का कोई कम्युनिटी नहीं होता है। इनका ये टर्म है, इनका ये टाइटल है, हिंदू आतंकवाद के पीछे किसका हाथ। और ये इन्होंने जो मिस्टर अमीश देवगन, मैं चाहूंगा सर कि इस वीडियो को एक बार जरूर देखा जाए। इस अमीश देवगन जी की बातों को मैं कोट कर रहा हूं सर। इस देश की जो विचारधारा है, विचारधारा से मेरा ताल्लुक है कि इस देश की मिट्टी में जो विचारधारा पनपती है वो है हिंदू। मीन्स द आइडियोलॉजी विच इज दिस कंट्री हैज, I mean to say that the ideology which thrives from the soul of this country is Hindu. सर हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं सर, और इस तरह का टर्म्स की इस देश की जो मिट्टी है उसमें जो विचारधारा है वो हिंदू है। That is very very objectionable terms used by the anchor। और जो रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अवनीश ओझा जी, इन्होंने कहा कि 4-5 टॉपिक्स को मैंने उठा लिए। इससे पहले मैंने 8-10 टॉपिक्स मैंने दिए थे सर, वो भी नेटवर्क 18 के ही थे और सारे को ऑब्जेक्शनेबल माना गया था। और द एनबीएसए हैज डायरेक्टेड टू द नेटवर्क 18 टू रिमूव इमीडिएटली to all the contents which was available on the YouTube और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर। तो मैं आप कैसे पिछले का मत करिए, इस वक्त एक इसी के बारे में बताइए हमें। जी। और दूसरा इन्होंने कहा सर, द ब्रॉडकास्टर रिपीटेड द सेम प्रोग्राम विद डिफरेंट नेम, ये देश है हमारा, ऑन 23 to 2020 फ्रॉम 12 PM to 1 PM ऑन न्यूज 18 बिहार एंड झारखंड। और सेम चीज CNBC आवाज पे भी 23 तारीख को दिखाई गई। मतलब इतना सनसनीखेज ये नहीं। इसमें एक मिनट, जब उन्होंने ये बोला ये देश है हमारा, कि देश है हमारा का मतलब क्या है? हम कौन है? अगर हम इस देश के वासी हैं फिर तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि ये देश हम हिंदुओं का है तब गलत हो जाता है। तो अब आप इसमें इनका वो कहना क्या था इसमें, ये देश है हमारा कह के? ये देश है प्रोग्राम का सब्जेक्ट मैटर क्या था? सब्जेक्ट मैटर था सर, हिंदू आतंकवाद के पीछे किसका हाथ। और इन्होंने एक टर्म्स यूज किया था। सुनिए, हिंदू आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है, वो तो है 20 फरवरी का। जी सर। अब ये देश है हमारा, अब आप वो 23 फरवरी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पॉइंट 1 से बोल रहा था सर। अभी आप पॉइंट 1 पे ही हैं, क्योंकि ये देश है हमारा, ये 23 फरवरी के नाम लिखा हुआ है जी। तो ये देश है हमारा में सर, ये जो पॉइंट नंबर 1 में हिंदू आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है सर,
यही इसी चीज को रिपीट किया गया था सर, ये देश है हमारा में। और ये कैसे हो सकता है अच्छा सर कि इस ठीक है, देश की जो विचारधारा है, जो विचारधारा पनपती है, जो मिट्टी है, वो हिंदू है। ये ऐसे नहीं हो सकता है सर, ये गलत शब्द है। शब्द सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है सर, शब्द सुनने में भी अच्छा नहीं लगता सर, जबकि इन्होंने तो लाइव कहा है। ये means the ideology which this country has, I mean to say that the ideology which thrives from this soul of this country is Hindu। वो बात तो हम आपकी समझ गए, अब आगे चलिए। जी, और ये सेम चीज वहां पर बार बार जो है सो सर, और इन्होंने कहा कि सर इस्लामिक आतंकवाद पर इन्होंने नहीं बोला है, वो स्पीडिंग न्यूज था सर। उसमें जो एक झाजी के विषय में मैंने बताया है, तो वो स्पीडिंग न्यूज चल रहा था 1 2 3 करके। या तो वो डिनाई कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। या तो आप उसका कोई सबूत दीजिए ना हमें, कब बोला, कहाँ बोला, या तो प्रोग्राम का नाम बताइए, हम इनको कहेंगे उसकी क्लिपिंग हमें दें। एक मिनट सर, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला है, तो हमारे सामने कुछ तो उसका मटेरियल, कुछ उसका तथ्य पेश करिए ना। सर विद योर परमिशन एक पॉइंट मैं रख सकता हूं? हाँ बोलिए। आई ट्राई कि मैं इनके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं। अंसारी जी, अगर आपकी कुछ कंसर्न है तो हम उसको एड्रेस करेंगे। बेसिकली आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि हिंदू आतंकवाद के पीछे किसका हाथ, ये बेसिकली पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी थी। तो हम इसको लेके देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन अस। और हमारे एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर इस पॉइंट को रेज किया अपनी बुक में, वो किताब पब्लिक डोमेन में, एवरीबॉडी कुड रीड इट। तो हमने वो टॉपिक उठाया और हमने तो उस पे पाकिस्तान पे सवाल उठाए। मतलब इट हैज नथिंग टू डू विद अस। हम इंडियंस का तो कोई इशू नहीं है उसमें। बेसिकली पाकिस्तान वाज कंस्पायरिंग समथिंग जिससे हमारे यहाँ पे एक डिस्प्यूट पैदा हो रिलीजन्स के बीच में। तो हमने तो उसको एक्सपोज किया, हमने तो उस पर सवाल उठाया कि किसका हाथ है इसके पीछे। अगर किसी पॉलिटिशियन ने पहले अगर बोला है प्रीवियसली, तो हमने उनको भी क्वेश्चन किया कि लाइक इफ इट्स विजिबल टू सी मिस्टर अंसारी, आप देखिए हमने ये क्वेश्चन एक उठाया था बीच में कि आतंकवाद में धर्म की मिलावट क्यों। ये प्रोग्राम हमने ही चलाया था, आर पार में हमने चलाया था। तो ऐसा कोई टॉपिक आता है तो हम इसको उठाते हैं। मैं आपकी बात का सर जवाब देना चाहूंगा मिस्टर अवनीश ओझा जी। आतंकवाद में धर्म की मिलावट क्यों? क्या कोई आतंकवाद का धर्म होता है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसमें धर्म की मिलावट क्यों कर रहे हैं। तो आप तो हिंदू आतंकवाद के पीछे किसका हाथ? आप हिंदू को भी आतंकवादी बता रहे हैं। नहीं आप मुसलमान को भी आतंकवादी बता रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद बोल रहे हैं। और सर मैं बोलना चाहूंगा सर, एक मिनट, आपने आपस में बहस नहीं करनी है। अगर इसलिए आए हैं तो आप बाहर जाके बहस कर लीजिएगा। हमारे सामने सिर्फ ये कंप्लेंट है, उसके बारे में बोलें और उसका जवाब दें, दैट्स ऑल। मेंटेन सम डेकोरम एंड सम डिसिप्लिन हियर। श्योर। यस। और सर वेरी ऑब्जेक्शनेबल स्टेट सेंटेंस इस्लामिक आतंकवाद वाज यूज्ड बाय द एंकर सुमित झा of News 18 Bihar and Jharkhand on 25 February 2020 between 6 p.m. To 6:30 p.m. in the program। इसी के विषय में मैं सर बता रहा था कि वो स्पीड में न्यूज चल रहा था, जैसे 100 का होता है 1 2 3 4। वो मैंने स्क्रीनशॉट भी शायद भेजा हुआ है सर। तो उन्होंने इस शब्द का यूज किया था। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसकी क्लिप जरूर मंगवाई जाए और सुनी जाए सर। ठीक है, हम वो देख लेंगे क्लिप। यस। और एक और है सर, पॉइंट 5 में CAA के नाम पर बहुसंख्यकों को ललकारा गया। तो ये देख लीजिए सर, CAA प्रोटेस्ट में तो बहुसंख्यक भी थे, अल्पसंख्यक भी थे, सभी कम्युनिटी के लोग थे। तो बहुसंख्यक को किनको ललकारा गया? बहुसंख्यक में तो बहुत सारे लोग थे, हमारे पूरे देश में इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था। तो किस बहुसंख्यक को ललकारा गया? उसमें तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सब थे। तो इस तरह का सनसनीखेज आप देखिए। हिंदू आतंकवाद के पीछे किसका हाथ? नागरिकता की लड़ाई मुगलों पर आई। मस्जिदों में मुसलमान महिलाओं की एंट्री कब? अच्छा आप एक चीज बताएंगे, मुसलमान महिलाओं की एंट्री कब बैन हुई है? कभी बैन हुई है मस्जिदों में? आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने का जो तरीका है,
एक मिनट रुकिए भाई। सर इफ यू अलाउ इनके पॉइंट्स हो जाएंगे तो मैं इनको पॉइंट वाइज मैं इनको समझाने की Just कोशिश a करूंगा भाई। minute, just a minute, Mr. Oza, let him finish, otherwise it will be never ending. मैम अंसारी जी आपका खत्म हो गया? नहीं, और है नहीं मैम। no, प्लीज प्लीज, क्या है तो आप एक बार में खत्म करिए प्लीज। तो इन्होंने कहा कि नागरिकता की लड़ाई मुगलों पर आई। ब्रॉडकास्ट ऑन द चैनल न्यूज 18 इंडिया ऑन 22 जनवरी 2020 was decided on the basis of controversial statement made by AIMIM अकबरुद्दीन ओवैसी। मैं फिर से कोट कर रहा हूं मैम कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को इन्होंने, जैसे कि अभी इन्होंने कहा है कि एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को दिखाया गया था। अगेन यही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, उनको ये लाइव चला रहे हैं। तो क्या इससे हमारे देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता खतरे में नहीं है? इस तरह का स्टेटमेंट अगर हम देंगे, इस तरह की बातों को, अगर किसी दबंगई को या किसी रेपिस्ट को अगर हम टीवी पर ला करके उनका गुणगान करेंगे, तो क्या ये हमारे समाज के लिए उचित है? ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। अच्छा, मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं की एंट्री कब? मैं ये जानना चाहता हूँ मिस्टर अवनीश ओझा जी से कि कृपया करके आप बताएंगे कि मुस्लिम महिलाओं की एंट्री बैन कब हुई मस्जिदों में? कभी बैन नहीं हुई है। कब बैन हुई है? सर अगर आपने पॉइंट रख लीजिए अंसारी जी, मैं आपको एक बार ठीक है, एक और दबंगई जुबान कहाँ गया ओवैसी का संविधान? ये ओवैसी का संविधान चलता है भारत में या हमारे हिंदुस्तान का संविधान चलता है भारत में? ये क्या है ये ओवैसी का संविधान? अब ओवैसी एक मुस्लिम है और एक मुस्लिम के अगेंस्ट में आप इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के दिल में हेट्स हो, एक पर्टिकुलर, मैं फिर से कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप इस तरह की इस्लाम के खिलाफ और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के को बदनाम कर रहे हैं। ये दबंगई जुबान। आप ये बताइए हमें मिस्टर अंसारी, हमें एक बात समझ नहीं आई। आप ओवैसी को इस बारे में आपका क्या कहना है? आप क्या ओवैसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं? मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इज द सोशल टेररिस्ट सर, और ये सारे सोशल टेररिस्ट हैं जो हमारे समाज में रह करके हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। तो आप खुद कह रहे हैं कि ओवैसी, आपका कहना ये है, आपका मानना ये है कि एक वो सोशल टेररिस्ट है, वो समाज को खराब कर रहे हैं, और अगर यही बात चैनल ने कह दी तो वो गलत कह दिया। लेकिन चैनल इनको सनसनीखेज बना करके इनको हीरो बना रहे हैं सर। चैनल सनसनीखेज बना करके किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अच्छा दिल में ठीक जगह है, बना आप समझ लिया। लेट अस सी वो क्या जवाब देते हैं। और कुछ इसके अलावा? जी नहीं सर, बाकी मैं सारा चीज रख चुका हूं। ओके, ठीक है। यस, नाउ यू गिव रिप्लाई स्पेसिफिकली टू दीस एलिगेशंस मिस्टर ओझा। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई एम कमिंग। सर इन्होंने कहा कि हीरो बना रहे हैं हम लोग ओवैसी को। सर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक करके आप पहले एक करके चलिए, या आप लास्ट में क्यों आ रहे हैं? सर ठीक है, मैं शुरू से शुरू कर लेता हूं। सर इन्होंने कहा मुगलों पर आई। सर ये टर्म भी हमने खुद से MIM जिसको हमने रेज किया था और हमने इसको क्रिटिसाइज किया था कि इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं आने थे। यू कुड गो थ्रू द डिबेट मिस्टर अंसारी, आप देख सकते हैं हमने इसमें किसी को हीरो नहीं बनाया था और इसमें कोई सेंसेशन नहीं। आई थिंक ही इज एक्सेप्टिंग कि आपने भी क्रिटिसाइज किया। हिज एलिगेशन इज कि व्हाई यू वांट टू शो देम एंड मेक देम हीरो। नो सर, हम उसको दिखा के हीरो नहीं बना रहे थे उनको। वी वर क्रिटिसाइजिंग इट ओनली बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट सर क्या होते हैं ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म चाहते हैं, कई बार रैलियों में ऐसी बातें बोली जाती हैं, तो सर ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ये चीजें रहती हैं। तो वी एज अ मीडिया हाउस हमें लगता है कि अगर ये चीज गलत हुई है कहीं, इन्होंने कहीं ऐसा नहीं था कि अकेले बंद कमरे में ये बात कही, रैली में कही थी सर, और जहां पे हजारों लोगों की भीड़ थी, तो पब्लिक डोमेन में वो चीज ऑलरेडी थी। वी जस्ट क्रिटिसाइज्ड इट विद द पैनल कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली ही सेड माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी। ये स्टेटमेंट भी सर अगेन इट वाज फ्रॉम अ पॉलिटिशियन फ्रॉम मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी, जिन्होंने कहा था कि तुम 100 करोड़ हो, हम 15 करोड़ हैं, हम तुम पे भारी पड़ेंगे। अगेन वी क्रिटिसाइज दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट अगेन वाज इन अ पॉलिटिकल रैली, किसी कैंपेन के बीच में उन्होंने कहा, हमने क्रिटिसाइज किया कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां तक इन्होंने कहा अंसारी साहब ने कि मुस्लिम महिलाओं की मस्जिद में एंट्री कब, सर देयर वाज अ पिटीशन फ्रॉम अ कपल फ्रॉम हैदराबाद एंड दैट पिटीशन इज इन सुप्रीम कोर्ट।
तो उन्होंने ये कहा था कि हमें अभी फुल राइट नहीं है मस्जिद में जाने का। मे बी अंसारी जी इस चीज के एक्सपर्ट हों, वो बता सकते हो कि हाँ अभी एंट्री है या नहीं है, बट दैट पिटीशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स स्टिल देयर इन द सुप्रीम कोर्ट। उसके बेसिस पे हमने ये डिबेट की थी उस वक्त कि भाई एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे मामले आ रहे थे उस वक्त, सबरीमाला का भी मामला आ रहा था, शनि मंदिर का भी मामला आ रहा था। तो उस बीच में हमने ये इशू रेज किया कि भाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगेन सर इसमें हमने सेंसेशनलाइज बिल्कुल नहीं किया था, हमने एक नॉर्मल डिबेट की थी इस पे। अच्छा, लास्टली ही सेड आई थिंक with some sweeping statements he said कि political parties को we are appeasing try to, but then that is again very false allegation, but still इन्होंने कहा कि इनका लास्ट पॉइंट था सर कि हम हीरो बनाते हैं ऐसे लोगों को। आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर अंसारी कि आप कोई भी स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया, इस तरह का स्टेटमेंट किसी ने दिया, चाहे वो वैसी हो चाहे उनकी पार्टी कोई दूसरे नेता हो, और वो लगा कि वो स्टेटमेंट हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए ठीक नहीं, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा से। अगर आपको लगे कि हमने वारिस पठान साहब को या हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने इनका गुणगान किया, हमने इनकी तारीफ की, तो वी आर रेडी टू फेस जो भी प्रोसीजर सर आगे हमें बोलेंगे। बट सर हमने क्रिटिसाइज ही किया है, और एक चूंकि बयान ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थे तो इसलिए हमने इशू उठाया था, और सिर्फ हमने नहीं बाकी चैनल्स ने भी उसको उठाया था, सबने क्रिटिसाइज किया था कि ऐसे स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है हमारे देश के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए। ओके, थैंक यू Sir, I just have a question, sir. How does this statement, Mr. Ojha, which has been reproduced, Mr. Amish Devgan said is देश की विचारधारा में कुछ ताल्लुक and all that और पनपती है तो वो हिंदू है। Madam, This statement. I would like to show you something, because there was lots of controversy regarding ideologies. So we did a show on if it's visible for you, ma'am. Yeah, it's visible. हमने ये भी हिंदू for you, मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा। Since हिंदुत्व, as Honorable Supreme Court has also defined, that it's a way of life. It's a way of life and it accommodates everybody जो भी यहाँ पे रहते हैं। तो हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं था that we are targeting somebody. Like you know, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ऐसे बहुत सारे शो हमने किए हैं जिसमें हमारे like Mr. Ansari was mentioning a show, ये देश है हमारा। हमने टाइटल ही इसीलिए दिया कि ये देश है हमारा, हम सबका, और यहाँ पे अगर कुछ गलत होता है तो हम उसको, उस इशू को हम रेज करते हैं उस शो में। द टाइटल ऑफ द शो इज ये देश है हमारा। तो ये हमारा पॉइंट है मैम। मैं कुछ बोलिए अंसारी जी, लास्ट वर्ड। यस, Have you concluded? yes, he has concluded. Yeah, Mr. Ansari, 1 मिनट में जो कहना कहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इन्होंने कहा कि हम जो भी है हिंदू और मुस्लिम को लेकर के चलने वाला प्रोग्राम चलाते हैं। इनका प्रोग्राम आप देखेंगे सर, आर पार, ये कौन सा भाईचारा का प्रोग्राम है? आर करो या पार, ये कोई प्रोग्राम का नाम तो हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि हर टॉपिक में आपका हिंदू और मुस्लिम, किसी एक खास कम्युनिटी का को टारगेट क्यों किया जाता है? तीसरा मेरा पॉइंट ये है सर कि प्रत्येक स्टेट जो भी मेरा एलिगेशन है वो सारा स्टेटमेंट पर ही बेस्ड है, मतलब कोई फैक्चुअल है ही नहीं, कोई फैक्ट। आप किसी महिला के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसका आप चलाइए, वो अच्छी बात है, लेकिन आप कोई स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट के आधार पे आप करने के लिए बैठ गए, तो ये इससे हमारे देश को ही नुकसान होगा, हमको ही नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा, आने वाले हमारी पीढ़ी को नुकसान होगा। मैं यही कहूँगा सर कि इसको ज़रूर एक बार देखा जाए कि इस देश की मिट्टी में हिंदू की विचारधारा कैसे हो सकती है सर। ये ताज्जुब की बात है, इस्लामिक आतंकवाद कैसे हो सकता है सर? हिंदू आतंकवाद के पीछे किसका हाथ है? हिंदू एक कैसे आतंकवादी हो सकता है सर? आतंकवादी वो आपने पहले भी कह दिया, हम समझ गए हैं। ठीक है, थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।